Sanjay, just check YouTube. I think we are not live still. Yes, sir. I'm working on that part. Just a second. Sanjay, am I audible? I think Ajay or Swati is on a mute right now, so I think we need to ask him to. Yes, I think I'll start with them. Prarik, just a second. I'm starting an introduction part of there as well. Okay. So, sir, we are live on the YouTube as well. I have put the YouTube on my mute as well so that all my voice is very clear. So, let's begin with our today's session part, how to create wealth using subconscious mind. So, with this thing, let me start beginning with our today's career talks. But before that, good evening, everyone, and welcome to our room, the Career Talks, in our fourth session, where we'll be discussing about how you guys can create a wealth using your subconscious mind. I hope most of you have been heard about money is through earning money through a subconscious mind. That is 80% is of your mind. So in today's session, this one, my voice is audible. Okay. I think my voice is very much audible now. Audible. Yeah, I think the network issues might come and go over that part, but yes, I make sure that it will not affect it very much. So with this thing, let's begin with subconscious mind. And in today's session, we have our own very own special guest, Mr. Ajay Kedia sir, who is the director of the Kedia Advisory Services, and we all know him very well through Kedia's commodities and his very much research field and advices over the Business News Channel. Along with that, we have a very special guest, C.S. Swati Agarwal, who is a life coach by profession and choice, and by qualification, she's a CA, Chartered Accountant. So with this thing, let me hand over it to Ajay sir and Swati ma'am to discuss it and share us about it, how they can, or how people, or we as a retail investor can create wealth using our subconscious mind. Sir and ma'am. Thank you so much, Sachin. Thanks. Thank you so much, Sachin, and welcome Swati on our platform Kedia Talk. तो सबसे पहले जनरली हम लोग ने ये स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मंडे टू फ्राइडे, टू बी वेरी फ्रैंक, मार्केट के पीछे हम लोग कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, और ज्यादा करके माइंड में सबके पैसा चलता रहता है. मेरे भी. ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज. ओके, अजय सर, तो ऑलरेडी वी हैव सीन, ऑलरेडी हमने देखा कि मंडे टू फ्राइडे चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे इन्वेस्टिंग की कोई भी बात हो, तो पैसा हमारे माइंड में कंटिन्यू चलता रहता है. और लिटरली जब मैंने स्वाति से बात किया तो ये टॉपिक मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे एक एग्जांपल मैंने और स्वाति ऐसे ही शेयर कर रहे थे कि बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो माइंड में ये रहता था अभी मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जैसे हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया कि मैं गिर नहीं सकता, मुझे बैलेंस करना आता है, उसके बाद हमने बाइक भी चलाई है, सब चीज भागे भी है. तो सिमिलरली क्या पैसे को भी हम इस ढंग से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेडर की बात करते हैं या इन्वेस्टर की बात करते हैं तो एक फियर फोबिया रहता है मार्केट के अंदर कि मुझे लॉस नहीं हो, और उसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू एक विस्कस साइकिल बन जाता है. तो जस्ट स्वाति से मेरा बात चल रहा था कि कैसे हम हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि अगर हम ये फोबिया से थोड़ा दूर हो जाए तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा. तो ओवर टू स्वाति, थोड़ा हमें भी गाइड कीजिए कैसे हम जो एंजाइटी रहती है मार्केट में या थोड़ा नर्वसनेस रहता है, हमने अभी देखा कोविड में मार्केट क्रैश कर जाएगा, कभी उठेगा नहीं, बट हमने देखा मार्केट भी नया हाई लगा रहा है और काफी टाइम पे हमारा एक बॉटलनेक हो जाता है माइंड पे कि मुझे शेयर बाजार में जाना ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक कि आज का जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो इस ढंग से बना है कि पैसा कुछ भी कीजिए शेयर मार्केट में ही आना है. म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर बाजार में आ रहा है, पीपीएफ, एफडी, वहां पे कोई ऐसे रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं. तो आई थिंक ओनली एसेट क्लास जो लेफ्ट है वो है इक्विटी मार्केट. और इक्विटी मार्केट में अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर अपने माइंड को पीसफुली अगर हम इन्वेस्ट के करते हैं तो डेफिनेटली एक जो प्रॉफिट बोलिए या एक हमारा जो गोल अचीवमेंट है वो इजीली हो जाता है. तो वो टू स्वाति कि कैसे हम हमारे माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और पीसफुली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं. Okay. Sanjit, can you put me on spotlight? I can start talking then. Yes, ma'am. Can you put me on spotlight?
I can start talking. आप spotlight पे ही है मैम. Once you started. And also please unmute yourself for the clubhouse as well. Who, me? Yes, आपको clubhouse पे एक बार unmute कर लीजिए आप. Just 1 second. Sanjay, can you please check with her quickly? Her mic is muted. मैं unmute correct? Should I start? Ma'am, your mic is muted on Clubhouse. मुझे unmute करना है क्या? Oh sorry. I thought I have to. कोई बात नहीं. Okay. Done? Yes. Please start. Okay. Good evening, everyone. Should I start? Yeah. Yes, sir. Please start. Okay. Good evening, everyone. I hope आप अपने घर पे सब लोग safe and healthy हैं. तो आज जो discussion हो रहा है, how to create wealth using a subconscious mind is very close to my heart because I feel life में कुछ भी impossible नहीं है. अगर आप अपने subconscious mind को train करते हैं, तो आप लाइफ में भले वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, एंजाइटी हो, जो है आप सबको ट्रेन कर सकते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आप लोगों को. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सीए की 2011 में और मुझे 10 साल हो गया है अभी एंड आई एंडेड अप बीइंग अ लाइफ कोच. तो ड्यूरिंग ये 10 साल मैंने लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया है. यू नो, बिजनेस, स्टॉक ट्रेडिंग, जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी. तो शुड वी स्टार्ट? Let's start that. आप क्या जानते हैं 1% of India's population, that is 1.4 billion का 1% होल्ड करता है 40% of a national wealth. Yes, आपने करेक्ट सुना. 1% होल्ड करता है 40% of a national wealth. एंड जो 99% लोग हैं उन लोग होल्ड करते हैं 60% of national wealth. तो कभी हम लोगों ने सोचा है ये 1% क्या डिफरेंट करते हैं जो वो इस लेवल पे है कि वो 40% ऑफ नेशनल वेल्थ होल्ड करते हैं और हम 99% लोग सिर्फ 60% होल्ड करते हैं, राइट? तो यही गैप जानने के लिए यही सीख. ओके, माय वॉइस इज लो. जस्ट 1 सेकेंड. What should I do? No, it's audible. No, it's audible. Okay. तो अगर हम देखेंगे तो 1% लोग डिफरेंट क्या करते हैं, यू नो, जो 99% लोगों से. तो मैं अपनी स्टोरी से आपके साथ स्टार्ट करूंगी. मैंने जब 10th पास किया, जब मैं 11th में आई, लोगों ने पूछा स्वाति तुझे क्या बनना है? तो मैंने एक ही आंसर दिया, पता नहीं यार, बहुत पैसे वाला बनना है, मुझे तो रिच बनना है. फिर जब मैंने 12th के बाद अपना सीए ज्वाइन किया, सीए पास हो गया, मेरा फर्स्ट पे चेक जो था वो 35,000 रुपीज का था और मैंने वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया, यू नो, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू बी अ कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट गर्ल एंड मैं क्वाइट हैप्पी थी उससे, यू नो, 35,000, अ गुड हैप्पी लाइफ फॉर माई सेल्फ. फिर उसके बाद मैं 9 to 6 जॉब, मुझे बहुत बोरिंग लगता था, यू नो, मेरे लिए 9 to 6 जॉब बहुत ही बोरिंग जॉब था, मैंने उसे छोड़ दिया. फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे और फिर वहां पे भी मैं अराउंड 30-35,000 कमा रही थी. लेकिन फिर मुझे वो जॉब भी बहुत बोरिंग लगने लगी, मुझे पैशनेट नहीं लगा, मैंने वो जॉब भी छोड़ दी. अब रिच बनना है, पैसे कमाने हैं, जो हमेशा मेरा था ड्रीम, वो हो कैसे? तो मैंने सोचा चलो स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, यू नो, दैट्स द बेस्ट वे टू अर्न मनी, यू नो, अ शॉर्ट टर्म, अ क्विक मनी जैसे लोग कहते हैं. मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगी. वहां पे भी मैं इजीली 30-35,000 कमा लेती थी और लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होने लगी, मेरा बीपी बड़ा हाई रहने लग गया, मुझे बहुत एंजाइटी रहने लगी. तो मुझे लगा नो इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं, उन पे ही सब कुछ निकलता. मैंने बोला नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करनी है मुझे, मैंने वो भी छोड़ दिया. फिर मुझे लगा अब जॉब चाहिए, अब कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए मुझे. तो मैंने सोचा क्या करना है जो मुझे रिच भी बनाए. तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने मेन शर्ट स्टार्ट किया. मैं मेन शर्ट्स बनाती 2 स्ट्राइप्स ब्रांड के अंडर, जो मैं Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस ये सब में बेचती ऑनलाइन. इट वाज डूइंग प्रीटी गुड.
30-35,000 फिर से कंफर्टेबल लाइफ, बट मुझे उसमें भी मजा नहीं आ रहा था, वो पैशन, वो किक नहीं मिल रहा था, मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं एक दिन अपने आप से पूछ रही थी, स्वाति तुझे तो बहुत रिच बनना है लाइफ में, यू वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, और तू 30-35,000 में इतनी खुश है, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज एक साइड में मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, जो मेरी डिजायर है पैसे वाला, बट आई एम हैप्पी, आई एम ओनली गेटिंग 30-35,000 रुपीज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तब मुझे लगा कुछ तो मैं रॉन्ग कर रही हूँ। फिर उसी दौरान मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए। उसी टाइम जब ये ढूंढ रही थी मैं, तब मुझे एक सेमिनार मिला, मिलियनर्स माइंड, जो बैंगलोर में हो रहा था, 3 days का वर्कशॉप था। मिलियनर नाम सुना, पैसे वाला, एक्साइटमेंट, यू नो, जैसे मुझे पैसे कमाने हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया मिलियनर्स माइंड। उस वर्कशॉप ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे पता चला ये 1% लोग क्या करते हैं जो ये 99% लोग नहीं करते हैं। ये क्या सीक्रेट है 1% के पास जो 99% के पास नहीं है, और यही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम सबको पता है हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, राइट? एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है? जो मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो हम थॉट्स को एनालाइज करते हैं, जब हम साइकिल सीखते हैं, राइट, जो भी हम स्किल सीखते हैं, वो किस में रहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं, वहां से लेके आज तक हमारे सारे मेमोरीज, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे सारे इमोशंस, मनी रिलेटेड इमोशंस, जो भी हमने सुना है, वो सब इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो आप सोचिए, कॉन्शियस माइंड अगर इतना है आपका, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, तो आप इमेजिन करिए, आप जब से बॉर्न हुए हैं आज तक, उसमें सब कुछ स्टोर है, राइट? आप बिलीव करेंगे 95% ऑफ एक्टिविटी जो हम दिन में करते हैं, सब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। 5% जो हम एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तो आप इमेजिन करिए सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सके, हम लाइफ में कहाँ पहुंच जाएंगे, बिकॉज 95% एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट? तो अब हम जानते हैं, अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि वर्क कैसे करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे वर्क करता है? जैसे हमारा मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें सब मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा सबकॉन्शियस माइंड के फाइल में। फिर हमें कोई डिसीजन लेना रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है, और हम डिसीजन लेते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, आपने उसमें कमांड डाला 2 + 2 = डैश, ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोग्राम में जाएगा, प्रोसेस करेगा और आपको आंसर देगा। सिंपल वर्क होता है कंप्यूटर का। सपोज कंप्यूटर ने आपको आंसर दिया 2 + 2 = 5। अब आपको पता है ये आंसर रॉन्ग है, 2 + 2 तो 4 होता है, 5 नहीं। तो आप क्या करोगे? आप वापस रन कमांड डालोगे, चेक करने के लिए कुछ गड़बड़ है, आपको फिर से वही आंसर आएगा 2 + 2 = 5। आप क्या करेंगे फिर? आप लैपटॉप को शट करेंगे, कंप्यूटर को शट करेंगे, वापस ओपन करेंगे, फिर से वही कमांड डालेंगे, आपको क्या आंसर आएगा? 2 + 2 = 5, राइट? तो आप जितना भी इसमें ट्राई कर ले, आपको आंसर मिलेगा 2 + 2 = 4 नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोग्राम में। अगर आप अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करेंगे, इसमें जो गड़बड़ है वो ठीक करेंगे एडिशन रिलेटेड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 2 = 4, राइट? तो हम आउटपुट पे कितनी भी मेहनत कर ले, हमें आंसर मिलेगा नहीं। आंसर कहाँ छिपा हुआ है? प्रोग्राम में। जब तक हम अपने प्रोग्रामिंग को ठीक नहीं करेंगे, हम आउटपुट में कभी हमें नहीं मिल सकता। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ समझने के लिए। सपोज इमेजिन करिए ट्री आपकी लाइफ है, ठीक है, इसमें फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है, आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, आपको पैसे का प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप इशू है, आपकी गोल इशू है, जो भी है, हम क्या करते हैं, फ्रूट में अगर प्रॉब्लम है तो फ्रूट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या वहां इसका आंसर छुपा हुआ है? आप फ्रूट को कभी ठीक कर पाएंगे? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम रूट में है, राइट? आपको उसका सीड चेंज करना पड़ेगा, या उसमें सॉइल चेंज करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है?
सबकॉन्शियस लेवल पे है, राइट, रूट प्रॉब्लम में है। जब तक आप रूट ठीक नहीं करेंगे, आप फ्रूट पे कितना भी दिमाग लगाते रहिए, वो कभी ठीक नहीं होगा, राइट। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब तक हम इनर को ठीक नहीं करेंगे, आप आउटर जितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। एंड ये लाइफ रूल है। आप अपनी हेल्थ को लीजिए, आप अगर हेल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपका हेल्थ बाहर दिखता है, अच्छा दिखता है, आप फिट रहते हो। बट अगर आप अंदर अनहेल्दी खाना खाएंगे, जंक खाएंगे, तो आप बाहर से भी अनहेल्दी लगेंगे। तो जो हमारे अंदर रहता है वही बाहर दिखता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, इनर ठीक करने में, आउटर ठीक करने में। हम प्रॉब्लम में ठीक करने लग जाते हैं, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, ये मार्केट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, कोविड आ गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, हम सब इसी में दिमाग लगाते रहते हैं, राइट। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ प्रोग्राम में है, हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में है, जिसे हमें ठीक करना होगा। अब आप कहेंगे कि सबकॉन्शियस में होता क्या है फिर, तो मैं आपको बता दूं सबकॉन्शियस वर्क कैसे करता है। सबकॉन्शियस के जो फाइल होते हैं, हम मनी रिलेटेड स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं मनी की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो मनी में आप देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, जो मनी रिलेटेड अगर आप देखेंगे सबकॉन्शियस में होता क्या है, तो उसमें जो हमारे बचपन से लेके आज तक हमारे पेरेंट्स के जो हमने अपने पेरेंट्स से सुना है, रिलेटिव से सुना है पैसे के बारे में, हम जहां कुछ भी पैसे का जो भी इंफॉर्मेशन आज तक लिया है हमने, राइट, वो सब इसमें स्टोर हो जाता है। जैसे हमने कई बार अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत स्ट्रगल से आते हैं, जितनी चादर है उतनी फैलाओ, अमीर लोग घमंडी होते हैं, राइट। इनफैक्ट आप देखेंगे हमारी बॉलीवुड मूवीज क्या दिखाती है, हीरो बेचारा एकदम गरीब, लेबर क्लास, और विलन हमेशा कैसा होता है, अमीर, एकदम बहुत पैसे वाला, और वो क्या करता है, गरीब। हीरो को हमेशा एक्सप्लॉइट करता है, राइट, हीरो को हमेशा एक्सप्लॉइट करता है, बेचारा हर गरीब को एक्सप्लॉइट करता है। हमारे दिमाग में क्या इमेज बैठ जाती है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, अमीर होना अच्छी बात नहीं होती है, अमीरी हर फसाद की जड़ होती है, करेक्ट। और यही हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो भले पेरेंट्स से हो, मूवी से हो, फैमिली से हो, जिससे से भी हमने सुना है। अब आप कहेंगे इसका आउटपुट में कैसे असर आएगा, बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ इसका असर कैसे आता है। सपोज मेरे आई थिंक क्लब हाउस में आप अभी भी अनम्यूट है, तो वहां पे हमको आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। अभी देखिए हमारी अब परफेक्ट है। और तो सॉरी, मोबाइल को आपके नजदीक ही रखिए, बिकॉज दूर रहता है तो आवाज नहीं आती। ओके सॉरी। तो फिर हमारे सपोज सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग है, रिच पीपल आर ग्रीडी, अमीर लोग घमंडी होते हैं। सपोज मेरी ये ट्रेनिंग है, तो क्या होगा, आपने कई लोगों को सुना है जो बोलते हैं यार मैं कमाता तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। सुना है आपने, मैंने बहुत जनों को सुना है कि मैं जो भी कमाता हूँ या तो मैं बहुत खर्चा करता हूँ, या मैं गलत चीजों में इन्वेस्ट कर देता हूँ, गलत शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट। हमने सुना है ये क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में माइंड में ट्रेनिंग क्या है, रिच पीपल आर ग्रीडी। तो आपको जैसे पैसे आते हैं आप उसको अपने पास नहीं रखना चाहते। सबकॉन्शियस ऐसे अपॉर्चुनिटी देगा जहां पे आप सिर्फ खर्च करते जाए, राइट। हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग क्या है, रिच पीपल आर ग्रीडी, और मुझे ग्रीडी नहीं होना है, मुझे रिच इसलिए नहीं बनना है। सबकॉन्शियस को ये भाषा समझ में आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ शेयर मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग शेयर मार्केट से है, राइट। इसलिए हमें बचपन में सिखाया जाता है पैसे झाड़ पे नहीं उगते, राइट। इसका मतलब क्या होता है, आपको इजिली पैसे नहीं मिल सकते, आपको बहुत मेहनत करके ही पैसे मिल सकते हैं, राइट। ये हमारा एक सबकॉन्शियस बिलीफ हो गया, ये हमारा एक बिलीफ हो गया। मेरे साथ भी बहुत बार होता था, सपोज कोई शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, मैं उसको 2-3 दिन फॉलो करती थी, शेयर पैसे बढ़ रहे, पैसे बढ़ रहे, पैसे बढ़ रहे। फिर क्या होता, जैसे मैं इन्वेस्ट करती उस शेयर में, उसके नेक्स्ट डे वो शेयर वैल्यू डम 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 करके गिरने लगता, और मुझे लगता मेरी ही किस्मत खराब है, अभी तक तो ये शेयर मार्केट में मस्त बढ़ रहा था, सडनली क्या हो गया, प्लीज इतना 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 गिरने लग गया, मेरी ही किस्मत खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं ये बिलीव करने लगी, बट ये तो आउटपुट था। मेरा बिलीफ क्या था कि मेहनत करने से ही पैसे झाड़ पे नहीं उगते, तो मैं ये पैसे कैसे मिलेंगे मुझे, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की है इसके लिए, ये तो मेरी इजी मनी हुआ, राइट। तो हमारे लाइफ में जो हमारी बिलीफ रहते हैं
वही हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब जैसे आप देखिए सुशील कुमार, आपको पता होगा कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने 5 करोड़ जीता था। आपके हिसाब से वो बहुत गरीब था, राइट? हमें पता है वो बहुत गरीब था। आज हमारे हिसाब से उसको कैसा होना चाहिए था? बहुत पैसे वाला होना चाहिए था। 5 करोड़ अमाउंट मिला उसको, लेकिन आपको पता है वो आज भी उससे भी ज्यादा गरीब है। वो आज भी गरीब है। क्यों? क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग ऐसी थी, उसे पैसे रखने नहीं आए। उसे लगा होगा कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, घमंडी होते हैं, या झाड़ पे पैसे नहीं उगते। वो सब सबकॉन्शियस ट्रेनिंग के ऊपर है। इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप का। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के पास एक टाइम पे बहुत पैसे थे, ही वाज अ सेल्फ मेड मिलियनेयर। बट एक ऐसा टाइम आया जहां पे उसने बिजनेस की वजह से लॉस किया। बट क्या वो फिर से गरीब रहा? नहीं, वो बिलियनियर बना। क्यों? क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग कैसी थी? रिचनेस की, राइट? अगर उसको बिजनेस में लॉस भी हुआ, बट वो फिर से कैसा बना? रिच बना। क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। हम क्या सोचते हैं। इनफैक्ट इसी से मैं आपकी एक फ्रेंड के बारे में शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड, वो हमेशा बिलीव करता है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग है कि मैं जिस चीज को छूंगा वो सोना हो जाएगा। वो हमेशा यही बोलता है, मैं जिस चीज को छूंगा वो सोना हो जाएगा। आपको पता है उसने लास्ट 3 साल में 5 बड़े फैक्ट्री डाले हैं। लास्ट 3 साल में 5 बड़े इंडस्ट्रीज डाले हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग है। आउटपुट तो सिर्फ फैक्ट्री है, बट उसकी ट्रेनिंग क्या है अंदर, कि मैं जिसमें पैसे डालूंगा वो बढ़ेगा, मेरे पास सोने वाला हाथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ट्रेनिंग क्या है। इनफैक्ट मैं अपना एग्जांपल ही लूंगी। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी कंफर्टेबल लाइफ है, राइट? मैं जब 30-35,000 में कंफर्टेबल थी, मैं रिच क्यों नहीं बनी? मैं अपने आप से पूछी थी, मैं रिच क्यों नहीं बनी? मेरे क्या लिमिटिंग बिलीफ थे? तो बचपन में मैं मम्मी पापा को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखती थी पैसे के लिए, कि उन झगड़ा हो रहा है पैसे के लिए, घर पे आर्ग्यूमेंट्स होते थे। मैं हमेशा अपने आप को बोलती थी कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे मेरे लिए बड़ी होके कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तो सबकॉन्शियस ने मुझे क्या दिया? 30-35,000 कंफर्टेबल लाइफ। वो मुझे रिचनेस का कैसे देगा जब मेरी लैंग्वेज ही में सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग है कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो मैं रिच कैसे बन सकती हूँ? तो मैं जब तक इसको ट्रेन नहीं करूंगी, मैं अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को ट्रेन नहीं करूंगी, तो मुझे यही आउटपुट मिलेगा, कंफर्टेबल लाइफ ही मिलेगी। तो जब हम अपनी किस्मत को खराब बोलते हैं या मार्केट को खराब बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो सिर्फ आउटपुट है। जो अगर आपको लॉस हो रहा है, जो भी, वो सिर्फ आउटपुट है। प्रॉब्लम सबकॉन्शियस ट्रेनिंग में है। और जब तक हम इसको रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, हम लाइफ में कितना भी मंदिर चले जाए, पंडित को पैसे दे दे, टोटका कर ले, यहाँ वहां कर ले, टैरो कार्ड रीडर करा ले, हमें कुछ नहीं होगा। बिकॉज सिर्फ आउटपुट पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमें चेंज करना पड़ेगा अपना सबकॉन्शियस ट्रेनिंग। और क्या हम इसको रीवायर कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। जो हम सीखेंगे अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन में, हम कैसे इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम वो 1% पे पहुंचे, राइट? अब ये तो हो गया 1, जहां पे हम अवेयरनेस रह रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग कैसा है, राइट? सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मनी। अब आप सोचेंगे रिलेशनशिप विद मनी क्या होता है? मनी के साथ किसी ने सोचा ही नहीं होगा कभी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, राइट? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखा आपने? कैसा रिलेशनशिप रहता है उन लोग का? लव का रहता है। मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत रिस्की रिलेशनशिप है, इसलिए उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वेट करता है, उसके फोन कॉल का वेट करता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वेट करता है, उसके फोन कॉल का वेट करता है, राइट? लव रिलेशनशिप रहता है। आप अज्यूम करिए आप अपने एक फ्रेंड के घर पे गए, वो आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है? आप उसको बहुत प्यार करते हो। आप क्या उसके पास वापस जाने के लिए मौका ढूंढते रहेंगे? हाँ, क्योंकि आपको लगेगा मैं उससे बार बार मिलूं, राइट? क्योंकि वो भी आपको बहुत, आपने उसको प्यार दिया, उसने आपको प्यार दिया। लव रिलेशनशिप है। सपोज यही आपका एक फ्रेंड है, ठीक है? आप उसके घर गए, वो बोलने लग गया तू कल चला जाएगा, तू प्लीज मत जा मुझे छोड़ के, तू मुझे क्यों जा रहा है छोड़ के, प्लीज मत जा मुझे छोड़ के। तो आप क्या उसके पास वापस जाना चाहेंगे? नहीं, राइट? क्यों? उधर फियर है, इनसिक्योरिटी है, आप उसके पास वापस नहीं जाना चाहेंगे। बट ये लव वाले फ्रेंड के पास डेफिनेटली जाना चाहेंगे, राइट? हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही होता है मनी के साथ। हम क्या मनी से प्यार करते कि हम डरते हैं, ओहो मेरे पैसे खर्च नहीं हो जाए, वो मुझसे दूर नहीं हो जाए, कल मुझे कोई खर्चा नहीं आ जाए। हम कैसे देखते हैं पैसे को? फियर से देखते हैं, इनसिक्योरिटी से देखते हैं।
हमें अपने ना बुरे दिन के लिए सेव करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सेव मत करिए, बट आपके इमोशंस क्या है, क्या आपका इमोशंस राइट है पैसे के लिए? हमारे इमोशंस रहते हैं फियर के, हमारे इमोशंस रहते हैं इनसिक्योरिटी के, स्ट्रगल के, पेन के। हम हमेशा बोलते राइट, पैसे स्ट्रगल से आते हैं, पैसे से पेन होता है, राइट? तो अगर आपकी इमोशंस नेगेटिव है, क्या आपकी लाइफ में पैसे आएंगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। मनी क्या काम करता है बताइए? मनी एनर्जी है, ठीक है? आपने मनी दिया, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिला? प्रोडक्ट या सर्विसेज मिले, ठीक है? तो ये एनर्जी एक्सचेंज हुआ, हम कह सकते हैं। लेकिन हम इस एनर्जी फ्लो को क्या कर देते हैं? हमारे फियर से, इनसिक्योरिटी से, पेन से, स्ट्रगल से ब्लॉक कर देते हैं। आप सिंपल समझिए, हार्ट है हमारा, हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड फ्लो होता है। अगर उसमें ब्लॉकेजेस रहते हैं, अगर हम उस ब्लॉकेजेस को निकालेंगे नहीं, तो क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा? नहीं, राइट? हम उस ब्लॉकेजेस को निकालेंगे तभी हमारा ब्लड फ्लो हो पाएगा। वैसे ही हम मनी के साथ होता है हमारा रिलेशनशिप। हमारी मनी एनर्जी में हम इतने ब्लॉक्स रखते हैं, करेक्ट? सब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, आप रेस्टोरेंट गए, हम लेफ्ट कॉलम नहीं देखते डिश क्या है, हम राइट कॉलम देखते हैं। सबसे लीस्ट पैसा, वेटर ये लेके आना। क्यों? खर्चा ज्यादा हो जाएगा, राइट? हमें डर है पैसे जाएंगे, हमारे हाथ से पैसे जाएंगे। हम हमेशा डर में जीते हैं, इनसिक्योरिटी में जीते हैं। तो क्या आपको लगता है वो आपके पास वापस आएगा? क्या वो आपका फ्रेंड बनेगा? क्या उसको आने का मन करेगा आपके पास? कभी हमें पैसे को छुआ है? अरे वाह, तू तो मेरा दोस्त है, कभी हमने किया है? या कभी उसको स्मेल किया है? यार बड़ा मजा आया तुझे स्मेल करके। क्या हमने उसको लव का रिलेशनशिप दिया है? नहीं, हम उसे डर का रिलेशनशिप देते हैं। हम उसे छुपा छुपा के रखते, कोई देख ना ले, नजर नहीं लग जाए, राइट? हम उसे छुपाते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं। वो कैसे आपके पास आएगा? उसे आने का मन कैसे करेगा आपके पास? अगर आपको उसको अपने पास बुलाना है, तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, डर के लिए, इनसिक्योरिटी के, पेन के, स्ट्रगल के, आप सबको ये निकालना पड़ेगा और उसे फ्री फ्लो आने दीजिए। आप जितना एनर्जी को फ्री फ्लो रखेंगे, उतना वो आपके पास आने के लिए हर अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स को मैसेज देगा कि इसको पसंद है पैसा, इसको पसंद है, इसको पैसा पसंद है, दोनों को एक दूसरे बहुत पसंद है। वो आपको हर एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको अबंडेंस एंड अबंडेंस में मनी मिले। तो ये बहुत जरूरी है, हम राइट इमोशंस रखें मनी की तरफ, हम नेगेटिव इमोशंस नहीं रखें मनी की तरफ। तो आज मैं चाहती हूँ कि आज रात को आप सब अपने आप से पूछिए, हाउ डू यू फील अबाउट मनी? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? एंड आई रियली वांट टू नो। बाद में आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये आपका रिलेशन क्या है मनी के साथ। ये हो गया सेकंड वे जहाँ पे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब थर्ड वे क्या है वेल्थ क्रिएट करने का? लैंग्वेज है, राइट? तो मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूंगी। थोड़े दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा हम लोग सेल्टॉस गाड़ी खरीदेंगे और सडनली हमें रास्ते में वही चीज नजर आती है। आई एम श्योर आप लोग के साथ काफी लोगों के पास हुआ वही चीज। एक और एग्जाम्पल था, जब हम लोग थाईलैंड जाने का सोच रहे थे, सडनली मुझे टीवी में से थाईलैंड का एड दिख रहा है, यू नो, ब्रोकर्स भेज रहे हैं थाईलैंड की ये पैकेजेस है, वो पैकेजेस है। तब मुझे लगा ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट? जो चीज मैं सोच रही हूँ उससे रिलेटेड मुझे सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। होता है आपके साथ? क्यों होता है ऐसे? क्योंकि लॉ ऑफ लाइफ है। जो चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज क्या होती है? एक्सपैंड होती है, वो चीज बढ़ती है। आप अगर फोकस करेंगे, सपोज जैसे मैंने सेल्टॉस पे फोकस किया, मुझे सेल्टॉस दिखने लगी। मैंने थाईलैंड पे फोकस किया, मुझे थाईलैंड पे दिखने लगा। इसी रिलेटेड में लैंग्वेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आपकी वाइफ कल आपके पास आती है, आपको बोलती है ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारी फर्स्ट लैंग्वेजिंग क्या होती है? आजकल घर पे खर्चे बहुत हो रहे हैं, बहुत बिल आ गया है, खर्चा थोड़ा कंट्रोल करें, राइट? हम पहले बात ये बोलते हैं। तीसरे दिन बाद वो आपके पास फिर से आती है, ग्रोसरी का बिल लेके आती है। आप क्या कहते हो? घर पे बहुत खर्चा हो रहा है,
घर पे खर्चा का अंत ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है राइट? किसी ने मैसेज किया नहीं आ रही है? आ रही है ना? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। अच्छे से आ रही है ना? ओके, somebody मैसेज में। ओके, फिर किसी ने फिर आपने बोला कि दूसरे दिन लेके ग्रोसरी का, आपने कहा बहुत ही घर पे खर्चा हो रहा है, प्लीज घर पे खर्चे का अंत करो, राइट? हम ये बोलते हैं। थर्ड डे बच्चे का एडमिशन फी लेके आई, क्या आज एडमिशन फी भरना है। इस घर पे खर्चे का अंत ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता, सिर्फ खर्चा खर्चा खर्चा, राइट? हम ऐसे बोलते हैं, ये हमारी लैंग्वेजिंग रहती है। तो हमारी लाइफ में क्या आएगी, किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं? खर्चा। तो आपकी लाइफ में क्या इंक्रीज होगा? खर्चा खर्चा खर्चा। हम कितने बार अपने आप से ये कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ये चीज होती है, मैं ही हमेशा बलि का बकरा बनता हूँ, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, राइट? हर गलत काम मेरे साथ होता है बोलते हैं, और फिर वो क्या होती रहती है, और हमेशा 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 होती रहती है। तो आप जितना अपने आप से ये चीज कहेंगे कि मेरे, जो आपकी लैंग्वेजिंग रहेगी, वो चीज क्या होगी आपकी लाइफ में, बढ़ती रहेगी। तो आप मुझे बोलोगे खर्चा हुआ तो खर्चा ही बोलेंगे, उसको हम क्या बोले, राइट? अब खर्चा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो खर्चा हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे बोले इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अब आप सोचेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ मैडम, खर्चा तो खर्चा है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल, मैंने ड्रेस खरीदा, ठीक है, आप बोलेंगे शॉपिंग में खर्चा किया। वाइफ को आप हमेशा बोलते हैं ना शॉपिंग में खर्चा किया, या वाइफ बोलती है आज मैंने किया वो, तो फिर से तुम खर्चा करके आ गई, फिर से शॉपिंग करके आ गई, राइट? हम यही बोलते हैं ना। अगर आप उसको ऐसे समझिए, वो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, अपना सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करने के लिए। तो क्या वो खर्चा हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट? क्या हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैसा लगता है सुन के, खर्चा अच्छा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है? इन्वेस्टमेंट, राइट? अच्छा लग रहा है, हाँ मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, इट्स गुड। खर्चा कहाँ हुआ, राइट? इलेक्ट्रिसिटी, आप बोलेंगे मैडम ये तो ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो खर्चा हुआ, खर्चा हुआ। आपको व्हाट्स इंटरनेट कौन दिखाता है पूरा दिन? कौन व्हाट्सएप फेसबुक पूरा दिन देखता है? आप कैसे रहेंगे व्हाट्सएप फेसबुक में? कैसे आपके बच्चे की ऑनलाइन कमाई होगी, स्कूल होगा, और आपकी ऑनलाइन शेयर मार्केट में कैसे कमाई होगी? तो क्या वो खर्चा हुआ कि इन्वेस्टमेंट हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट? आप इसको एक और नजरिए से देख सकते हैं, आपने जो सर्विसेज ली या प्रोडक्ट लिया, उसके अगेंस्ट आपने पैसे दिए, ठीक है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पे कर रही है, रिटर्न में जो आप उसको पैसे दे रहे हो वो अपने एम्प्लॉयज को पे कर रही है, आप सोसाइटी का भी बेनिफिट कर रहे हैं, आप उसका घर चलाने में भी हेल्प कर रहे हैं। यस और नो? यस, राइट? तो क्या ये खर्चा हुआ? मैं सोसाइटी को दे रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो ये खर्चा कैसे हुआ? और अगर आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट हुआ, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? सब वे ढूंढेगा आपके लिए, आप इन्वेस्ट कर सको, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा आपके लाइफ में, जहाँ पे आपके क्या बढ़ते रहेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, और आप देखेंगे आप फिर से रिच 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 होते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या आते जा रहा है? सिर्फ अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है, एक तो सबकॉन्शियस माइंड अवेयरनेस कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, सेकेंड इज हमारा रिलेशनशिप कैसा है मनी के साथ, एंड थर्ड चीज हमारी लैंग्वेजिंग कैसी है मनी के साथ। तो आज से आप कभी नहीं बोलेंगे खर्चा, क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट किया, किसी चीज में मैंने इन्वेस्ट। आप होटल भी जाइए, वो होटल डिनर इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे? आपको एक्सपीरियंस मिला, आपने वो एक्सपीरियंस किया, राइट? अच्छा खाना खाने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो इन्वेस्टमेंट हुआ आपके लिए, राइट? तो अब हम लोग देखेंगे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्रामिंग कैसे किया जाए। तो इसके दो वे होते हैं, अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन। अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए चार चीज बहुत जरूरी है। फर्स्ट, पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। सेकेंड चीज, क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड चीज, आप सुनाई दे रहा है ना आपको भी? थर्ड चीज, हमें उसको विजुअलाइज करना है, और फोर्थ चीज, हमें उसे फील करनी है। काफी लोगों ने मुझे बोला है कि अफर्मेशंस वर्क नहीं करते, यू नो, सिर्फ बोलने से मैं पैसे वाले हो जाता हूँ। परफेक्टली, बोलने से सिर्फ पैसे वाले नहीं हो सकते आप, आपको ये चारों चीज करनी पड़ेगी। मैं बोलती रहूंगी मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे मुझे मिल जाएगा, नहीं, मुझे उसके लिए विजुअलाइज करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, मेरी लैंग्वेज इन पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज मुझे एप्पल पसंद नहीं है
और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए कहा आई लव एप्पल। आपको पता है ये क्या करेगा सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड मेरे सबकॉन्शियस फाइल में जाएगा, ढूंढेगा एप्पल का मीनिंग क्या है। उसमें रेड एप्पल उसको दिखेगा, ग्रीन एप्पल दिखेगा, एप्पल आईफोन दिखेगा, एप्पल वॉच दिखेगा, एप्पल मैकबुक दिखेगा। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा एप्पल लेना है, राइट? उसे पता नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए काफी लोगों के लिए अफर्मेशंस वर्क नहीं करते क्योंकि वो क्लियर नहीं होते। अगर मैं बोलूं मुझे वॉशिंगटन रेड एप्पल पसंद है और मैं रोज बोलूंगी तो मुझे पसंद आने लग जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्टली पता है इसको क्या चाहिए, तो वो आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट भी देगा। इज एज सिंपल एज दैट। हम क्या करते हैं, हम अफर्मेशंस कैसे रखते हैं? आई वांट टू बिकम रिच। रिच का डेफिनेशन क्या है? गरीब के लिए 1 लाख में रिच हुआ, आपके लिए 1 लाख में रिच नहीं हुआ, राइट? तो हमें जरूरी है कि हम स्पेसिफाई करें I want 1 lakh rupees or 1 crore rupees till end of December 2021. आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए, आपकी अफर्मेशंस ऐसे होने चाहिए। I want, it should be with positive words, right? अब हम चलते हैं तो मैंने ना ये लिस्ट, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है अफर्मेशंस में, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो अफर्मेशंस उसी लैंग्वेज में बोलिए। अगर आप हिंदी में घर पे बात करते हो तो आपकी अफर्मेशंस हिंदी में होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो आपकी अफर्मेशंस इंग्लिश में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जिस अपने लैंग्वेज में बात करते हो वही भाषा समझ में आएगी उसको। मैंने क्या किया है आपके लिए एक लिस्ट ऑफ टैग में देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें हिंदी के अफर्मेशंस है। अगर किसी को इंग्लिश के अफर्मेशंस थी तो प्लीज मैसेज मी, आई फॉरवर्ड दैट आल्सो। ये सब में आप ओपन करेंगे तो हिंदी के बेसिक अफर्मेशंस दिए मैंने। जैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड मेरा जो है वो मैग्नेट है, मनी मैग्नेट है। अब आप उसको स्पेसिफिक आपको बनाना है, आपको जो चाहिए आपको उसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा अफर्मेशंस में। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। अब मैनिफेस्टेशन होता क्या है? तो इसके कई लेवल्स होते हैं मैनिफेस्टेशन के। हम इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन। तो आपको पता है, आप जस्ट एक बार सब अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं, एक बार प्लीज एक बार आईज क्लोज करिए और जस्ट अगर मैं आपको बोलूं वो इमेजिन कर लीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ आपके सामने एक बड़ा एप्पल है, एक रेड कलर जूसी एप्पल है। आप सबको दिखा, राइट? पर एक्चुअली क्या एप्पल है? नहीं, हमने इमेजिन किया, राइट? तो हमारा माइंड को रियल और ये जो इमेजिनेशन रहता है उसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता। हमारा ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता है, उसके लिए सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, उससे रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। अब मैंने जो आपसे कहा एप्पल है, आपने इमेजिन कर लिया, राइट? एक रेड जूसी एप्पल, बट एक्चुअली तो वो नहीं था ना। इन द सेम वे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। जब भी सपोज मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे सेल्टॉस चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं मुझे सेल्टॉस चाहिए, मुझे रेड सेल्टॉस चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर मैं उसमें अपने माइंड में एक रेड सेल्टॉस का इमेज एग्जैक्टली जैसे मुझे चाहिए, एक रेड सेल्टॉस, अगर मैं उसको ड्राइव करती हुई मुझे फील करना है, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे रिच बनना है, मुझे रिच बनना है, उससे नहीं होगा, मुझे फील करना पड़ेगा कि मैं रिच हूँ। आप जब तक फील नहीं करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स को नहीं भेज पाएगा। वो फीलिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ। आपको फील करना है कि आप रिच है। इसके दो वे आप जिसको फील भी कर सकते हैं। एक्चुअली एक बेसिक मैं आपको बताती हूँ। क्या करिए, इमेजिन करिए आप एक मूवी थिएटर पे बैठे, ठीक है? इमेजिन करिए आपके सामने एक स्क्रीन है और आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, आपको जैसे बनना है, जैसे आपको एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको एक मर्सिडीज चाहिए। इमेजिन करिए वो मर्सिडीज के साथ आप खड़े हो, आप उसको चला रहे हो, ठीक है? इमेजिन करिए थिएटर में, और फिर आप अपने आप को उसमें थिएटर में, आप वो हीरो का जो कैरेक्टर है आप उसमें एंटर करिए और फील करने लग जाइए कि आप वो लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज चला रहे हैं। और इस फीलिंग को, इस इमेजिनेशन को विद पॉजिटिव वर्ड्स, विद क्लैरिटी, सुबह शाम सोने से पहले और मॉर्निंग, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी नींद में भी एक्टिव रहता है, राइट? आप उसको बोलिए, फील करिए, इमेजिन करिए, मैनिफेस्ट करिए, और आप देखेंगे आप एक मैग्नेट की तरह होने लग जाएंगे। मनी हर जगह से आपके पास आने लग जाएगा, आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज खुलने लग जाएंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस आने लग जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपको
ये 99% से लेके 1% तक पहुंचा दे। एंड आई होप इट वाज अ यूजफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो थैंक्स अजय फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने व्यू शेयर कर सकूं सबके साथ। और आई होप कुछ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, यूजफुल था आप लोग के लिए। आपका टाइम दिया, आपका प्रेशियस टाइम दिया मुझे। तो थैंक यू फॉर टेकिंग अ संडे इवनिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू स्वाति। एंड डेफिनेटली ये काफी आई ओपनर था, बिकॉज बचपन से ये चीज देखी थी कि कोई भी चीज को अगर हम लोग इमेजिन करेंगे तो वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। एंड फ्रेंकली हम भी मार्केट में, खास करके बाकी का तो पता नहीं, बट मैं भी जैसे ज्यादा करके मैं कमोडिटीज में देखता हूँ तो मैं भी इमेजिन करता हूँ, हाँ चांदी है 1 लाख रुपए होने वाली है, गोल्ड है 4,000 हो जाएगा। एंड लिटरली वो होते हुए देखते हैं तो और बोलते हैं सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आई थिंक फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अजय, सिर्फ सोचने से नहीं, आपको फील भी करना पड़ेगा, उसका क्लैरिटी होनी, जैसे आपने बोला 1 लाख, राइट, तो आपको क्लियर भी होना पड़ेगा अपने इमेज में। बिल्कुल, ये एक एड ऑन चीज था कि फील भी करना है, क्योंकि अभी तक क्या सोचना एक अलग चीज है, लेकिन जब फील करते तो वो एक फीलिंग रहता है कि हाँ आई एम दी विनर। और डेफिनेटली ब्रेन को जो आपने 2-4 एग्जांपल्स बताए वो परफेक्ट है। कि हमने एक हिंदी मूवी भी देखी थी 3 इडियट, उसमें कहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो बोला दिल इतना बेवकूफ होता है, उसको जो सा बोलेंगे वैसा वो ट्रेन हो जाता है। एंड फ्रेंकली ये होता है। मेरा लास्ट 1 वीक बिफोर ऐसी बात चल रहा था। आई यूज्ड टू मॉर्निंग में मैं वॉकिंग पे जाता हूँ तो मेरे फीलिंग रहता है कि अभी मैं स्लीप हो जाऊंगा, अभी मैं स्लीप हो जाऊंगा। तो ब्रदर के साथ ही मैं सुबह वॉकिंग पे जा रहा था, बोला देख तेरा ये माइंड बना रखा है तो नहीं कि तू स्लीप हो जाएगा, तू खाली इमेजिन कर जो लोग रोप पे चलते हैं, देखो चलने के लिए कितनी जगह चाहिए, चलने के लिए हार्डली अपने को मेरे 2 शूज इतनी सी जगह है, इसके ऊपर मैं चल सकता हूँ। तो हमारे मन में डर है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अगर यही चीज अगर हम रोप वॉकर की बात करें तो उन्होंने अपने माइंड को इस ढंग से ट्रेन कर रखा है कि मुझे खाली ये रोप पे चलना है और इजी है, कुछ ही नहीं है। तो हमने एक बार हमारे माइंड को ट्रेन कर लिया कि शेयर मार्केट इजी है, मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक आपको जो एक ऑरा आजू बाजू में, जैसे मेरे साथ भी काफी टाइम होता है कि जैसे स्वाति ने भी कहा कि बहुत बार हम एक चीज जैसे थाईलैंड सोचते हैं तो तुरंत थाईलैंड। मेरे साथ भी ये चीज कैसे होता था, फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को बोला यार हम लोग शिरडी जा रहे हैं या वैष्णो देवी जा रहे हैं। फ्रैंकली मैं टीवी चालू करता हूँ तो शिरडी के साईं बाबा का प्रोग्राम आ रहा है या पिक्चर आ रही है, मैं बोला ये हो क्या रहा है। फिर कोई बोलता नहीं बाबा तेरे को बुला रहे हैं, बोला हो सकता है। फिर और किसी से बात होती, बोले यार मैं भी शिरडी जाके आया, ये प्रसाद ले। तो ये एक है कि जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वही चीज होता है। अगर हम सोचते हैं कि ये खर्चा है या शेयर मार्केट स्पेकुलेशन है तो हम लोग को वो एक स्पेकुलेशन जैसा ही नजर आता है। अगर हम देखते हैं कि ये इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा गोल इसी से पूरा होने वाला है, पॉजिटिव अगर हम हमारे माइंड को ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव ऑरा है वो हमारे पास बनता है। हाँ स्वाति। इनफैक्ट अजय जी मैं इसमें शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली शेयर मार्केट में डर बहुत होता है, हमारे में एंजाइटी बहुत रहती है, राइट। हमारा रिलेशनशिप कैसे मनी के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेगेटिव इमोशन है मुझे लॉस होगा, वो डर है हर टाइम लूज करने का, वो आपके पास नहीं आएगा। जब तक आप उसको वापस नहीं लाएंगे, वो अबंडेंस पे आपके पास नहीं आएगा। उसको लव वाला रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। आप उसे प्यार करके तो देखिए, आपको मिलेगा, वो अबंडेंस में जरूर मिलेगा। अगर मैं अभी किसी से कहूँ 100 रुपए के नोट को आप क्रश कर दीजिए, I can bet 2000 नोट को, 100 तो ठीक है, 2000 नोट को आप क्रश करके दिखा दीजिए, आई एम 100% गारंटी 99% हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक डर है कि यार पैसे को खराब कैसे करूं, 2000 रुपए, 2000, वो हम लोग का इमोशनल अटैचमेंट है, राइट। कैसे मैं 2000 रुपए को जा देता हूँ। जो अगर ये 2000 रुपए को क्रश कर लिया, इसका मतलब उसको क्या यार वापस आ जाएगा, उसमें क्या है, वो कैसे ना कैसे वे में मेरे पास 4000 बन के आएगा। लेकिन वो जो इमोशन है पैसे के साथ है, वो डर का नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट में कहते हैं ये बहुत जरूरी है। की टेक अवे तो काफी है आज के सेशन में, बट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को एक चीज लगा, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ वाइफ को, बोला देखो जो परचेजिंग करना है तो कर ले, मुझे ना ये खर्चा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे इन्वेस्टिंग दिखाई दे रहा। तो नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस अगर ऑडियंस में
किसी को कोई सवाल, देखिए ये पूरा जो आज का सेशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव एट केडिया ये नहीं है कि हम लोग शेयर मार्केट को प्रमोट करें, ये करें। सैटरडे संडे माइंड फ्री रहना चाहिए, और हाँ कुछ गलती ऐसी रहती है कि जिससे हम लोग घबरा जाते हैं। तो आज का जो सेशन रखने का ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे हम हमारे जैसे 3 इडियट में देखा दिल को बेवकूफ बनाए, तो वैसे हम हमारे माइंड को भी बेवकूफ बनाकर कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लेट इट भी कोई भी चीज हो। जैसे बचपन में सुना है कि भूत से डरते हैं, लेकिन जब उसको फेस करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं है, हम लोग आराम से निकल सकते हैं। तो संचित कैन जस्ट चेक इट आउट, अगर कोई क्वेरीज है या किसी कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली वी कैन टेक इट आउट। Sure, sir. We surely take out some questions as well. I think even the audience. एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन, संचित आपके सवाल मत लेना, आपके भी लेने हैं, मुझे मालूम है आपके पास भी काफी सवाल है, पहले हम ऑडियंस के ले लेते हैं। Sure, sir. Sure, sir. पक्का ऑडियंसेस के ही क्वेश्चन लेंगे। So I request in the audiences as well, if you have any questions, आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, so please आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख के हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Along with that, over the क्लब हाउस आप अपना हैंड रेस करके आ सकते हैं ऊपर, और क्वेश्चंस स्वाति मैम से और अजय सर से पूछ सकते हैं। हाउ यू कैन क्रिएट योर वेल्थ यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड फॉर द अफर्मेशंस एज वेल, क्लब हाउस पे मैंने लिंक दे रखा है हमारा केडिया कैपिटल का, इंस्टाग्राम पे आप जाके आपको वहां से अफर्मेशन मिल सकते हैं। तो अब ऑडियंसेस आपके लिए ओपन है, हैंड रेस करिए, क्वेश्चन पूछिए मैम से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, पहले आप लोग पूछ लीजिए। सर आप म्यूट पे हैं। आई थिंक आप म्यूट पे है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। सचिन आप यस बेटा, मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा ज्वाइन होने में थोड़ी टाइम लग गई, मेरे काफी कोशिश करने के बाद ये मेरा कनेक्ट हो पाया है। बहुत अच्छा लगा सेशन सुन के, मैं थोड़ा अंतिम क्षण में पहुंच पाया, लेकिन जो अजय भाई साहब ने भी कहा वो भी बहुत अच्छी बात थी। वो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें अभी, और फिर ये जो दौर हमारा गुजरा अभी कोरोना का, इसमें हर आदमी अपने आप को थोड़ा सा अनसिक्योर महसूस करने लग गया है। तो ठीक बात है, आपकी बात से मैं भी काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, और अपने जीवन को कुछ और वापस चेंज करने की कोशिश करेंगे। और सत्तू भैया भी बैठे हैं साथ में, तो लगता है कुछ उनसे भी कुछ हमें कुछ जानकारी और कुछ अच्छा समझने के लिए मिलेगा। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। थैंक्स स्वाति, फिर आपको एक बार ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। थैंक यू अजय भैया। आपका विश्लेषण बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक बात है, धन्यवाद। देखिए इसके अंदर मैं 2 चीज ऐड करना चाहूंगा। फ्रैंकली देखिए, जो माइंड को आप ट्रेन करते हैं, तो मेरे 2 चीज मैंने मेरी लाइफ में ये चीज देखी है, और प्रैक्टिकल उसका मेरे को बेनिफिट हुआ है। पहला, व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर, तो आई हैव स्टार्टेड विद कमोडिटी इन 2003, जब इंडिया में कमोडिटी स्टार्ट हुआ था। एंड लिटरली ठीक है, इक्विटी मार्केट सब था, एंड बहुत चैलेंजेस थे कि कमोडिटी का सी इंडियन मार्केट में कोई जानता नहीं है। एंड मैंने वो टाइम पे, मेरे साथ मेरे बड़े ब्रदर थे विजय केडिया, तो साथ में हमने ये प्लान किया कि कमोडिटी में ही कैरियर बनाना है, और कमोडिटी में स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड फ्रैंकली टाइम लगा 2 साल 3 साल, लेकिन जैसे स्वाति ने भी कहा कि आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें पॉजिटिव चीज दिख रही है, फील होना चाहिए। एंड फ्रैंकली लगा टाइम, लेकिन आज की डेट में काफी मार्केट में अगर कमोडिटी की बात करें तो हमारी कंपनी काफी सेल्फ रेंट है, और काफी मार्केट में। सेकंड, एक मेरा जो चेंजेस आया माइंड को ट्रेन करने का, क्योंकि एंजाइटी देखिए शेयर मार्केट में जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, थोड़ा सा एक पेसिमिज्म सभी में आता ही है, मेरे में भी ऐसा ही था कि मार्च अप्रैल के अंदर अरे अब तो लॉकडाउन हो गया, कैसे थिंग्स विल मूव। देन ऑल ऑफ अ सडन 2 या 3 मई, 1 मई की छुट्टी थी, 2 और 3 को बोला ऐसे तो काम होगा नहीं, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, पॉजिटिव कैसे होना चाहिए। 2017, 18, 19 आई यूज्ड टू बी गोइंग एवरीवेयर फॉर सेमिनार्स, ज्यादा करके मैं काफी सेमिनार्स लेता था।
एंड एवरेज रहता था कि महीने में एक सेमिनार में तो जाना ही पड़ता था मेरे को, तो साल के 10-12 सेमिनार होते थे। मतलब तो कोविड आ गया और कब तक चलेगा, जैसे मेरे फ्रेंड से सुनता था यूएस में, यूरोप में, कि यार ये तो साल भर तो चलने वाला ही है, तो करे क्या दूसरा। थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन किया और देखा मतलब जब सेमिनार नहीं कर सकता तो वेबिनार तो कर सकता हूँ। एंड फ्रेंकली लास्ट ईयर आई हैव डन मोर देन 250 वेबिनार, और ये साल में जून तक अभी तक 250 प्लस वेबिनार मैं कर चुका हूँ। तो इम्पोर्टेंट मैंने मेरी लाइफ में ये चीज देखा, जैसा आप अपने माइंड को अपडेट देते हो कि देखो ये चीज हम कर सकते हैं तो पॉसिबल है। और जो 2003 की बात कर रहा हूँ, फ्रेंकली स्वाति जानती है कि वी आर बेस्ड ऑन कल्याण। तो कल्याण कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन कल्याण में आज की डेट में भी हमारा हेड ऑफिस कल्याण है, बाकी मोर देन 1100 फ्रेंचाइजीज है, मोर देन 6-7 हमारे ब्रांचेस है। तो कल्याण से बाहर निकलना और वो भी पैन इंडिया प्रेजेंस करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज वाली चीज थी। हमने भी माइंड में ऐसा रखा भी नहीं था पहले कि कैसे होगा, बट ये माइंड में रखा था कि हमको कल्याण में काम नहीं करना है, हमको बाहर जाना है। और ऑटोमेटिक जैसे स्वाति ने बोला कि थाईलैंड सोचो या सीडी सोचो, आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो एटलीस्ट आप पॉजिटिव अगर सोचोगे, तो वो एक शाहरुख खान का एक अच्छा डायलॉग भी है कि जब आप शिद्दत से कोई चीज करते हैं तो पूरी कायनात आपके पीछे हेल्प करने के लिए लग जाती है। और लिटरली मैंने मेरी लाइफ में यही देखा कि अगर आपने आपका गोल बना लिया और रोज उसके पीछे आप पड़े हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक ना एक सपोर्ट मिलता रहेगा। तो खाली मेरा की टेक अवे जो मैंने सीखा है और लाइफ से, और आप लोग को जो बताना चाहता हूँ वो यही है कि पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव अगर आप सोचोगे, जैसे स्वाति ने एग्जांपल बहुत अच्छा बताया खर्चे का और इन्वेस्टिंग का, तो मैं भी अभी करूंगा अफर्मेशन वाइफ को फोन करके कि भाई जो परचेसिंग करनी है तो कर, खर्चा नहीं कर रही तो इन्वेस्ट कर रही, ऐसा कर। तो दूसरा तरीका भी है कि आप उसके स्टॉक ले लीजिए। मैं ज्यादा करके लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आपने पिज्जा ऑर्डर किया है तो जितने का पिज्जा आपने ऑर्डर किया है उतनी का ही जुबिलेंट फूड ले लीजिए। अगर आपने कपड़े खरीदे तो उसमें आप खर्चा नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 500 में आएगा नहीं, लेकिन 2000 का तो डिविडेंड उतना मिल जाएगा ना, डिविडेंड मिल जाएगा। 4 पिज्जा खरीदना पड़ेगा डिविडेंड की। तो संजीत, ओवर टू यू। और कोई क्वेरी है तो हम लोग लेते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन क्लब हाउस। Sure, sir. So anyone in the Zoom audience have any questions? Because I think आप विजय केडिया के भाई हैं? बिल्कुल सर, विजय केडिया के भाई हैं। राइट, ठीक है। So I think we have answered all of the mostly questions part over the Zoom call. So anyone any other question over the Zoom? I think YouTube पे देख लेते हैं। YouTube पे भी एक बार चेक कर लीजिए, एक बार आप YouTube पे भी चेक कर लीजिए। हाँ, एक सेकंड, पवन सर कुछ कह रहे हैं। अजय, क्या मैं एक बात पूछूं आपसे? अजय बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आप एक स्टॉक को लेके कितने दिन तक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में गिनते हैं? कितने साल तक एटलीस्ट यू वांट टू स्टॉक इन दैट स्टॉक? देखिए, रिटर्न अपनी जगह पे है। अभी मैं एक स्टॉक, जैसे जनरली पब्लिक पे मैं नहीं बोलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, खास करके स्टॉक रिकमेंडेशन, बट मैं एक रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताता हूँ। 2016 में आई हैव बॉट वेंकीस एट 650 रुपीज। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं वेंकीस खरीद रहा हूँ तो मुझे अगर डबल हो जाएगा पैसा मैं निकाल दूंगा। मैंने 2016 जयपुर में एक सेमिनार था, तो मेरे इन लॉज के साथ मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ और ऐसा ऐसा है, बिजनेस मॉडल ऐसा है। मैंने पूरा समझा और वेंकीस में लिया था। उसके बाद मैंने उसका भाव 4000 होते हुए देखा, आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है। एंड लास्ट ईयर जब ये कोविड का कंसर्न हुआ तो वी हैव सीन वेंकीस के अंदर सेम ऐसा ही बड़ा करेक्शन आया और 550-600 रुपए का भाव हो गया था। फ्रेंकली मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है और लास्ट वीक की 2 दिन पहले ही वापस 4000 का। तो पहला चीज आप समझिए, मैंने वेंकीस लिया है, मोनोपोली कंपनी है। दूसरा, मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मेरा हार्ड अर्न मनी है, मेरा स्पेकुलेटिव मनी नहीं है, बोरोड मनी नहीं है, तो पीस ऑफ माइंड है। थर्ड, जिस दिन मुझे ऐसा फील होगा कि मैं चिकन भी टच भी नहीं करता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ पूरा, तो बिल्कुल मैं धंधे में पैसा लगा रहा हूँ। मुझे मालूम है इंडिया में कोई भी नॉन वेज खत्म नहीं हो सकता, तो मैं क्यों पैसा निकालूं उसमें से। हाँ, अब अगर आप मार्केट को टाइमिंग करना चाहते हैं कि भाई मैं टॉप में निकाल दूं फिर बॉटम में ले लूं, तो इट्स योर कॉल। आज रिलायंस है,
2019 दिसंबर के एजीएम में क्लियरिटी था कि ये स्टेटमेंट है मैनेजमेंट का कि हम ये कंपनी को डेट फ्री कर देंगे, और दिख रहा है सामने। तो आज मैंने रिलायंस अभी 1100-1200 में हमारे कुछ बास्केट्स है, उसमें हमने बाय किया, 2200 का भाव है, काफी जो मतलब पैसा डबल हो गया, निकाल देना चाहिए। धंधा बंद हुआ है क्या, या धंधे को कोई थ्रेट है क्या? जब तक आप अपने माइंड को वो लेवल पे ट्रेन नहीं करेंगे ना, बहुत बार क्या होता है, हमने कोई स्टॉक लिया और लेते ही 10-20% की तेजी आ गई तो इमीडिएटली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुक करो नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो जो ये मन में एंजाइटी आती है कि प्रॉफिट बुक करो, उससे निकलना बहुत जरूरी है। उसके लिए तरीके और है, हम अगला सेशन कुछ प्लान कर रहे हैं योगा के ऊपर भी, कि कैसे पीस ऑफ माइंड, कि जब तक आपके मन में शांति नहीं होगी ना, आपका मन यहाँ वहां भागता रहेगा। एंड फ्रैंकली मैंने मेरी लाइफ में यही सीखा है कि आप अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं, या बोल सकते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने अच्छी कंपनी में पैसा डाला है, लॉन्ग टर्म डाला है, और मुझे ये पैसे की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ज्यादा करके हमने देखा है कि आदमी छोटे छोटे टारगेट्स पे क्यों निकल जाता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आज मैंने ये 1000 शेयर लिए हैं, मेरे बच्ची की शादी होगी, मैं ये बेच के खत्म कर दूंगा। तो वो ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आप लॉन्ग टर्म देखिए। आपको काफी वीडियोस भी मिल जाएंगे, बुक्स भी मिल जाएगी, बट प्लीज इतना ही है कि शेयर मार्केट में जो ये न्यूज चैनल्स पे आते हैं कि अभी आप बाय कर लिए 2000 की कमाई, 5000 की कमाई, जब तक आप चिल्लर को नहीं छोड़ोगे ना, 2000 का नोट नहीं पकड़ सकते। तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखिए, और ऐसी कंपनी देखिए जिसका प्रोडक्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, कंपनी कहीं नहीं भाग के जाने वाली, प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी भी अच्छी है। संचित। Okay, thank you so much, sir, for this wise advice. I think people लोग बाग जल्दी इस एडवाइस को ढंग से देखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तरीके से। With this thing, let me close out this YouTube room over the Zoom session. Anyone in the Zoom session have any question, any doubt? आप अनम्यूट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली। जस्ट पवन जी, आपको मेरे ख्याल से अगेन कोई डाउट है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पवन जी। Yes, Rahul, just give us 2 minutes. We'll just ending up our session at the Zoom, and then we will be definitely taking all the questions over here. Okay, sorry. So I think yes, Pawan sir. हाँ जी Pawan। थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी शेयर में काम किया नहीं, अभी अजय जी भाई साहब ने बताया। तो क्या है कि ये जो कोविड का सेशन जो चला था उस वक्त मेरा भी, हमारे सबसे पहले भिलवाड़ा में कोविड का, राजस्थान में सबसे पहले भिलवाड़ा को अटेम्प्ट किया था। उस टाइम बहुत भिलवाड़ा हाईलाइट में आया था, जब भी कोई भी चैनल खोलो भिलवाड़ा का नाम टॉप पर था। तो उस वक्त मैंने ही 20 मार्च के आसपास 2020 में मैंने चालू किया था। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अंदर भय तो रहता है कि मेरे पैसे कहीं बिगड़ तो नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि एक बार आंखें बंद कर लो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलने दो, तो हो सकता है अच्छा गेन मिले। और हुआ भी ऐसा कि हमने जो बेच दिया फिर वो काफी ऊपर तक चला गया, और यूं रहा यार हमने गलत किया, इसको बेच करके नहीं बेचते तो हम शायद आज बहुत अच्छा गेन कमा पाते। तो आपकी आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल जो एडवाइस है, और हम कुछ कोशिश करेंगे। क्यों धंधा तो अभी हमारा जो है बहुत, भिलवाड़ा में अभी भी हम लॉकडाउन में ही चल रहे हैं। सैटरडे संडे यहाँ बंद रहता है वैसे भी, और नाइट कर्फ्यू चलता ही है कंटिन्यू। अभी फिर से थोड़ी सी यहाँ कुछ थर्ड वेव की चल रही है। बिल्कुल पवन जी, धन्यवाद। खाली एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो कहावत है बुजुर्गों ने बताया है, सस्ती चीज बार बार और महंगी चीज एक बार। तो शेयर बाजार में भी यही चीज होती है कि आप सस्ते पेनी स्टॉक के पीछे जाओगे तो बार बार आपको चोट भी लगेगी और आपको भागना दौड़ना पड़ेगा। तो बेटर है अच्छी चीज लो, लॉन्ग टर्म लो, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अच्छी चीज लो और भूल जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Swati, for Zoom. We will continue on Clubhouse. Bye. Bye, everyone. Bye, Satya. Thank you so much. Thank you so much. We'll continue this session over the Clubhouse. Sure. Bye, Manju.